अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच के ऊपर, जो कि एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने ही जीता है और इंग्लैंड ने हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन हासिल कर लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले दो ही मैचेस में। आज हम बात करेंगे कि इस मैच में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसके ऊपर बात करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ हैं यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, साल भाई और सियाल भाई, हमारे फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम आप सबको और देखने वाले सुनने वालों सबको। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक बोथ ऑफ यू टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द गेम। किस तरह गेम रहा, पाकिस्तान ने किस तरह से इस गेम को किस अप्रोच के साथ खेला, बेसिकली ओवरव्यू दोनों दे दें अपना अपना, देन वी विल गो फ्रॉम देयर। साल भाई से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए, आई थिंक obviously it's going to be very obvious situation कि हमने second test match में we were very competitive. Obviously हमने finally एक pitch ऐसी तैयार की जो कि हम कह सकते हैं कि sporting pitch थी, result oriented pitch थी, और उसके अंदर हमने team selection भी जो था वो हमारा कदरे बेहतर था versus जो हमने last match में जो खिलाया था. Obviously Azhar Ali was a big name that was not in the squad. यासिर भाई और जहांगीर भाई आप दोनों ने बड़ी बात की इस बारे में और rightly pointed out in the last videos as well कि I think if Azhar Ali was only going to be there because of his 100 test matches, landmark, then I think we had to look elsewhere. And credit goes to this management that they identified and then they corrected that problem. So I think more or less I agreed with the team. हमने जो है वो spin oriented squad खिलाया था because the pitch called for that as well. So from that perspective, and we'll talk about that when we come. I'm just going to give you a whole overview of the game. So I think again, Abrar was the star of the whole test match from both the sides, even though he didn't win the player of the series in the end, but still he was the find. और जिस तरीके से he single-handedly kept us in the game from the bowling perspective, हमें दिक्कत हो रही थी इंग्लैंड को आउट करने के लिए, और जिस तरीके से अब्रार ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से सऊद शकील ने परफॉर्म किया दोनों इनिंग्स में, he was hard done by a very controversial decision in the end, which we'll talk about when we talk about Pakistan's batting approach in the fourth innings. But having said that, I think those were the two main guys for me, जो कि बहुत ही ज्यादा नुमाया रहे अपनी परफॉर्मेंस से. और obviously England was England. They know one way to play, which is attacking cricket, and then they have the bowling to tackle us on these pitches as well. So I think overall a very hard fought game, very lot of ups and downs, a lot of peaks and valleys. But having said that, I think credit will go to this management. We'll talk about the batting as well, and then I have some thoughts regarding that as well. But having said that, extremely well fought game. Both teams played well. Not the smartest of cricket at all times, but it's a 5-day game over 450 overs or so. So you will see some things that people are not up to mark all the time. But overall, a good game, a competitive game. This that you wanted to see. Unfortunately, Pakistan came up short again in the end, but a good game of cricket. जी यासिर भाई, how did you see this game? यार सबसे पहले तो आई थिंक जो फर्स्ट मैच की ड्रबिंग के बाद पाकिस्तान फाइनली मेड द पिच राइट, और स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी बहुत बातें करते रहे हैं उस पे. तो अगर इसमें मोहम्मद यूसुफ की कंट्रीब्यूशन थी जो वो स्पेशली किया पिच बनाने में, तो हैट्स ऑफ टू हिम कि व्हाटएवर फीडबैक ही गिव इट. अब पिच के बाद जो है सेकंड चीज ये थी कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी उसमें मार खाई है, और शायद डिलिबरेटली नहीं, बट बेसिकली यू हैव टू पिक द बॉलर्स जो कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उसी में से पिक करोगे ना. समहाउ मोहम्मद अली पे काफी बैंक कर रहे थे विद हिज फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, बट ही फेल्ड टू डिलीवर. हैविंग सेड दैट, हम लोग पहले मैच में भी कह रहे थे कि ब्रार को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एंड सैल भाई राइटली सेड आल्सो ही वाज द डिफरेंस इन द फर्स्ट इनिंग. और आई थिंक पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड देम इंग्लैंड टू 270 to 80 ऑट इन फर्स्ट इनिंग, व्हिच इज वेरी वेरी गुड. तो हम लोग उस पर पहले भी बात करते रहेंगे, अगर टॉस के टाइम के ऊपर ये डिसीजन किया, इंग्लैंड को ये चॉइस दी जाती पाकिस्तान को कि अगर आप इंग्लैंड आपको पहली इनिंग में 280 करता है तो पाकिस्तान कुड हैव टेकन इट एनी डे. अब उस पे आप ये आर्ग्यू कर लें कि वो 5 के रन रेट से खेल रहे थे, ये 6 के, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. To me, I think difference in this game is the Pakistan's first inning where we were like 50-60 run short. अगर हम उनके टोटल के थोड़ा सा भी करीब होते हैं ना, मतलब पाकिस्तान स्कोर 202 समथिंग, तो rather than that if we made like 250 odd or something, तो we could have won that game easily. अब उसके अंदर आप इनएक्सपीरियंस को भी कह सकते हैं, मतलब रिजवान पे काफी काउंट कर रहे थे हम और आगा सलमान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग डिलीवर नहीं कर सके. और बाकी अगर आज फाइनल डे के ऊपर देखें
तो पाकिस्तान बैटेड रियली रियली वेल। आई थिंक किसी भी ग्राउंड के अंदर किसी भी पिच पे फिफ्थ डे की विकेट आसान नहीं होती, जितना मर्जी बैटिंग ट्रैक हो। और साउथ शकील और उससे पहले नवाज जो है, उन उन दोनों ने दे ऑलमोस्ट डिड मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क इन फर्स्ट आवर। स्पेशली जब हमने अर्ली आते ही फहीम अशरफ की विकेट लूज की है, तो उसके बाद इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप लगी है। अब उस टाइम पे एक पार्टनरशिप जो है वो होनी चाहिए थी आगा सलमान की और इसकी साउथ शकील की, विच अनफॉर्चुनेटली वो एक कंट्रोवर्शियल डिसमिसल जो है जोएल विल्सन का, जिस पे आपकी फीडबैक भी चाहेंगे जहांगीर भाई। आई थिंक उसने थोड़ा सा गेम को टर्न अराउंड कर दिया। बट हैविंग सेड दैट, गिवन द रिसोर्सेज पाकिस्तान हैज, और फर्स्ट गेम के अंदर जो हुआ उसके बाद आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कम बैक, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट बाबर्स कैप्टनसी ऑल्सो, इवन दो मेनी पीपल डजंट एग्री विद इट। आप प्लेइंग 11 में एक दो आप कह सकते हैं कि मे बी पाकिस्तान शुड हैव प्लेड शान मसूद, बट अदर देन दैट 5 days आई थिंक उस बाबर की कैप्टनसी अच्छी थी पहले टेस्ट मैच की निस्बत। बाकी जहांगीर भाई जी आप इसी को एक्सपैंड करें और अपना एनालिसिस भी दें। जहांगीर भाई, बेसिकली यू हैव कवर्ड before एवरीथिंग you बहुत say अच्छी तरीके anything, से, तो वो रिपीट ही हो जाएगा जो मैं भी बात करूंगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप बिफोर अपना ओवरव्यू दे दें, ब्रीफ सा, लेकिन आपने लास्ट गेम के अंदर थोड़े से हार्श वर्ड्स पाकिस्तान के लिए यूज किए थे, जिसके अंदर हम सारे एग्रीमेंट में थे। तो मैं अपने व्यूअर्स को जरा दिखाना चाहता हूं, थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। आई वांट टू टाई बैक टू द लास्ट गेम। तो आपने सी का वर्ड यूज किया था, और आई नो आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि वो आप बहुत ही आराम से नहीं थ्रो करते हैं, आपने बड़ी जिम्मेदारी से वो वर्ड्स यूज किए थे, और हम सब उसमें के एग्रीमेंट में थे। लेट्स जस्ट से वी आर नॉट आइसोलेटिंग जहांगीर भाई हियर, वी आर ऑल इन एग्रीमेंट कि पाकिस्तान ने बहुत ही टिमिड अप्रोच से खेला था, और कावर्ड अप्रोच थी हमारी बिकॉज ऑफ द पिच डायरेक्शन। तो अब आपके क्या व्यूज हैं उसको लेकर? पाकिस्तान ने कुछ सीखा लास्ट मैच से, उसको आप जरा आगे बढ़ाएं प्लीज। अच्छा, सैल भाई ने सही ना बात कर रहे हैं आप। बाबर भाई को, जहांगीर भाई को नजम सेठी बना दिया कि सेठी साहब आपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था, तो आज हमें ये बताइए। कहा, हाँ। मेरी चिड़िया जो है ना वो भी दाना चुगने गई है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ यार, मैंने जो बात की थी ना, ऑब्वियसली आई एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो एज वेल, कि मुझे प्रॉब्लम था अप्रोच के साथ, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द पिच एंड देन द वे वी प्लेड दैट गेम। और जैसे यासिर भाई ने कहा कि उस गेम से इस गेम में माइल्स का डिफरेंस था। जिस तरह से हमने पिच बनाई और जिस अप्रोच के साथ हमने क्रिकेट खेली, वो अप्रोच, क्योंकि मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कहा था कि आई रेट दीज गाइज वेरी वेरी हाईली, आई थिंक दीज गाइज आर हाईली टैलेंटेड, लेकिन ये अंडर अचीवर्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, कि अपने टैलेंट के साथ कई बार जस्टिस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर अप्रोच। लेकिन इस मैच में आई नो वी डिडंट विन, लेकिन अप्रोच कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता या क्वेश्चन नहीं कर सकता कि हमारी टीम की अप्रोच अच्छी नहीं थी। वी प्लेड विद द राइट इंटेंट, राइट अप्रोच। स्पेशली बैटिंग में हम कई बार कह देते हैं कि छक्का लगा देते हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नहीं होती, रन नहीं बनाते हैं, लेकिन in this game I'm really proud of the team, the way they played with the positive intent and positive mindset overall. That was really heartening to see for me, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कितना, मेरे दिल के करीब है ये टीम पाकिस्तान की, तो जब ये अच्छा नहीं करते तो कई बार इमोशनल बंदा हो ही जाता है। अच्छा जहांगीर भाई, व्हाट चेंजेस, मतलब अब हम कराची जा रहे हैं थर्ड टेस्ट मैच खेलने, इवन दो सीरीज इज लॉस्ट, और WTC जो है उसका भी प्रोस्पेक्ट अब खत्म हो गया फाइनल खेलने का, तो मे बी दिस गिव्स फ्रीडम टू पाकिस्तानी टीम ऑल्सो कि अब वो प्रेशर नहीं है कि यार हमें सारे मैच जीतने हैं, तो मे बी फियर फैक्टर खत्म हो जाता है कि हम मैच हार जाएंगे ये वो। तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू शुड एक्सपेक्ट के पाकिस्तान को करनी चाहिए आपके ख्याल में, ऑब्वियसली, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पिच ऑल्सो? और इस पे फिर आपके बाद सैल भाई भी प्लीज इसी पे कमेंट करें। जी देखें, जो चेंजेस है ना, वो इस गेम की भी ऊपर मैं 100% तो एग्री नहीं था जो प्लेइंग 11 उन्होंने खिलाई थी, क्योंकि एक तरफ बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम ऑलराउंडर्स को खिला के थोड़ी सी बैटिंग डीप करना चाहते थे, तो वहीं आपने एक बैट्समैन कम कर दिया था, क्योंकि व्हेन यू ऐड नवाज एंड फहीम बोथ इन द टीम, दे बोथ कैन बॉल और सिमिलर काइंड ऑफ रोल वो प्ले करते हैं, और फिर जाहिद भी आपकी टीम में रखा। यू शुड हैव हैड ओनली 2 स्पिनर्स, वो कोई भी 2 होते, एंड देन यू शुड हैव गॉन विद अनदर एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बैट्समैन, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट का गेम है, और आपको टुवर्ड्स द एंड वो मिस भी आपने किया क्योंकि एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन आपकी टीम में कम था। तो मेरी नजर में अगर नवाज को लेके आ रहे थे तो शायद जाहिद महमूद को बिठा सकते थे, और आपके पास फिर 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स होते, तो क्योंकि ये गेम तो 5वें दिन तक जानी ही नहीं थी जिस तरह की पिच इन्होंने बनाई थी, तो दे वुड हैव बीन इनफ फॉर मी। अभी गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम, मेरा यही ओपिनियन है कि इनको शान मसूद को ऐड करना चाहिए,
इन प्लेस ऑफ जाहिद महमूद। और फास्ट बॉलिंग में भी अगर नसीम शाह फिट हैं तो ही वुड कम बैक फॉर मी इन प्लेस ऑफ मोहम्मद अली में भी। और बाकी के लड़के भी आप देख सकते हैं क्योंकि सारे डोमेस्टिक प्लेयर कराची में ही खेल रहे हैं। हसन भी वहीं पे हैं, मीर हमजा इज प्लेइंग एज वेल। और अगर आप समझते हैं कि आपके इस स्क्वाड में कुछ अच्छे बॉलर्स नहीं है तो यू कैन ऑलवेज ऐड एनी मोर बॉलर्स और अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कीजिए, एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेके आइए। और कराची की पिच की जहां तक आपने बात की है तो देखें, टर्निंग पिच ही बनानी चाहिए मेरी नजर में तो, लेकिन रिवर्स स्विंग का फैक्टर उसके ऊपर रहेगा और वो अभी इंग्लैंड की टीम हमसे ज्यादा बेहतर कर रही है। Yeah, I think I echo with all the things that you just said. In terms of team selection, I think I was okay with this team selection. मैंने इस स्पेसिस में बात की लेकिन ब्रीफली मैं एनालिसिस दे दूं जरा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो थी वो कि ने जो है वो पूरी स्पिनिंग अप्रोच से इसको अप्रोच किया था, तो उसके लिए आपको फिर मिनिमम 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स तो खिलाने पड़ते हैं। और नवाज को जो है वो मैं टेस्ट मैच के अंदर एज अ स्पिनर ऑप्शन नहीं देखता हूँ। व्हाट आई सी इज अ मैचअप, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर जो कि ऑब्वियसली वी बैंक ऑन हिज बैटिंग। अगर हमें अजहर अली को हमने ड्रॉप किया तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो यही थी कि हम एक फ्रंट लाइन बैट्समैन जिस तरह आपने कहा शान मसूद को हम खिला देते, लेकिन फिर उसके साथ एक मसला ये होता कि हमारे पास बॉलिंग रिसोर्सेज हमारी कम हो जाती। हम नवाज को ड्रॉप नहीं करना चाह रहे थे इस मैच से बिकॉज एज आई सेड दिस वाज अ टर्निंग ट्रैक एंड इवन दो लाइक यू सेड 2 स्पिनर्स शुड बी इनफ, बट वी वांटेड फॉर द मैचअप। जिस तरह जो रूट को भी बेन स्टोक्स ने पूरा मैचअप्स के लिए यूज किया, आज जो रूट ने दोनों हमारे लेफ्टीज को बॉलिंग की थी 5th डे पर प्रेडोमिनेटली एज अ स्पिनर, जब नवाज और सऊद खेल रहे थे और उसके पहले फहीम और सऊद खेल रहे थे। तो द ऑप्शन दैट स्टोक्स वेंट विद वाज रूट। तो इस तरीके से अगर इनके 2 राइट हैंडर्स अगर लग जाएं तो फिर आप नवाज को यूज कर सकते हैं एज अ मैचअप ऑप्शन। तो आई वाज ओके विद दैट। और अगर आप एक ही फ्रंटलाइन स्पिनर सीमर के साथ जाते हैं जिसका नाम मोहम्मद अली है, तो फिर आपके पास कोई और दूसरा एंड से रोल आर्म करने के लिए होना चाहिए, जिसको उन्होंने फहीम अशरफ की तरफ देखा। एंड द रीजन दे चोज फहीम वाज बिकॉज दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज बैटिंग। ये चाहते थे कि हमारे फ्रंटलाइन 8 बैट्समैन हो। हमने देखा लास्ट मैच हमारी टेल बहुत लंबी हो गई थी और हम जो है वो बड़े उसमें परेशानी में आ गए थे। तो दे वांटेड टू गो विद एन एक्स्ट्रा बैटर। I don't know if I agree with that approach, but I can understand why they went with that. ठीक है ना? I don't see any changes. Maybe आप मोहम्मद अली की जगह पे या नसीम अगर फिट है तो he walks into the team at any day, या फिर अगर हसन अली को हम लाना चाहते हैं तो उसको ला सकते हैं। जिस तरह आपने कहा रिवर्स स्विंग विल बी अ फैक्टर, तो हमें पूरा ओवर रिलायंट अबरार पे नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी इंग्लैंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वेरी intelligent team. They will go and look at the videos, they'll look at what Abrar does, and then they're going to try to work him out. So I don't know if he's going to be that effective unless we make another rank turner. So I think more or less team will be the same, but others will have to get their hands up and say, you know what, we will help with the bowling, especially in getting 20 wickets. अच्छा, इसी मैच के ऊपर अगर रहते हुए there are few highlights of this game performances wise, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी है, इंग्लैंड की तरफ से ऑब्वियसली है क्योंकि वो ये मैच जीते भी हैं। तो पाकिस्तान की पहले हम बात करते हैं, हाउ डिड यू सी अबरार डेब्यू के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट किए, लंच से पहले शायद 5 आउट कर गए थे वो, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक डेब्यू उनका रहा है। तो आई वुड लाइक यासिर भाई टू हैव फ्यू कमेंट्स ऑन अबरार अहमद कि कैसा डेब्यू आपने उसका देखा है। जी, फिनोमिनल बॉलिंग। मैंने आई एम लकी इनफ कि मेरा टाइम उसके साथ काफी मैच करा था फर्स्ट इनिंग के साथ, तो मैंने पहला स्पेल उसका पूरा का पूरा देखा है अबरार का, एंड इट्स वेरी फिनोमिनल। गुड थिंग इज कि ही इज नॉट स्केयर्ड कि मुझे फ्लाइट देनी है या नहीं देनी, और वो जो है उसने बैट इवन दो के बैंड डेकेट जो है उसको रिवर्स भी खेल रहा था और वो भी, लेकिन दे वर नेवर कंफर्टेबल अगेंस्ट इट। And the ball to Ben Stokes, I think it's probably the ball of the game so far for me. So I feel कि Ebrar has a very very good debut. अब उसमें ये है कि maybe he needs to work on hiding his skill in a sense कि मतलब आजकल इतने analysts available हैं तो people gonna see very quickly और catch him very quickly कि कौन सी बॉल उसकी गुगली है, कौन सी वो है फ्लिपर है। But I think it's a very very good find for Pakistan. और सेकंड आई वुड वांट टू मेंशन सऊद शकील। आई मीन व्हाट अ फाइंड, अमेजिंग टेम्परामेंट, और जिस तरीके से कल वो ऐसे लग रहा था कि जो भी बॉलर आ रहा है ही इज जस्ट पुटिंग हिज बैट बिहाइंड एवरी बॉल। तो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, इवन दो हम लोग बात कर रहे थे कि शायद सऊद शकील को थोड़ा सा पहले चांस मिलना चाहिए था, बट एनीवेज देर आए दुरुस्त आए, तो he got the opportunity, and I feel कि he's gonna be shouldering the burden of middle order for a very long time for Pakistan, inshallah.
गुड टेम्परामेंट, गुड टेक्निक। तो इवन दो कि आपने सीरीज दोनों टेस्ट मैच लूज किए हैं, बट टू मी दीज टू गाइज आर द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। जी सियाल भाई, आई वुड लाइक टू ऐड आई वुड लाइक यू टू ऐड समथिंग ऑन स्पेशली साउथ शकील, क्योंकि अबरार को तो अच्छी तरह उन्होंने कवर किया है। तो साउथ शकील को आपने किस तरह से देखा है एज अ बैट्समैन? phenomenal. मैंने उसे फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू उसने किया था शायद इंग्लैंड के अंदर लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले, 50 ओवर। जी 50 ओवर में जब उन्होंने जो 50 की थी, आई फेल्ट ही वाज अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर, वेरी करेक्ट प्लेयर, वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी, एंड ही इज अ लेफ्ट हैंडर, राइट? तो दो लेफ्ट हैंडर्स आर वेरी हार्ड टू कम बाय, और फिर इस तरीके का कॉम्पैक्ट प्लेयर जिसके पास pretty much सारे शॉट्स भी हैं, he's got a good head on his shoulder. तो टेम्परामेंट जो है टू मी इज की फॉर बैटिंग, चाहे आप पावर हिटिंग कह लें, चाहे आप ब्लॉकिंग कह लें, चाहे आप इंटरमीडिएट शॉट्स कह लें, चाहे आप किसी भी तरह की बैटिंग कर लें, temperament will get you places. I like Shan Masood. I liked Shan Masood in T20 World Cup, not because he was some phenomenal T20 player, but he was very intelligent. He was very temperamentally very sound, and he was not going to make those dumb mistakes that we have been known to make. So इसलिए मुझे साउथ शकील हमेशा से, as little as I'd seen him, I found him very attractive in terms of कि we can build from this guy. तो इसने जिस तरीके से दोनों मैच में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और काफी मेडल शो किया है टू स्टैंड अप टू माइटी इंग्लैंड, और जिसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं, स्टोक्स हैं, एंडरसन है, ऑब्वियसली वुड का पेस भी है। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को मनवाया है, और ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। जिस तरीके से उन्होंने फॉल्स शॉट पिंडी में खेला था और एक्स्ट्रा कवर पे आउट हुए थे वो, ही लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। आई डोंट नो, ही प्लेड अ चांसलेस नॉक फॉर मी। ओके, इतने बड़ी चेस के अंदर, 350 की चेस के अंदर आप चांसलेस नॉक खेलते हैं, और आप हर तरह से जो है वो आपके पास जवाब होता है, चाहे वो पेस हो, स्पिन हो, डजंट मैटर। तो दैट शोज अ लॉट। आई रियली फेल्ट बैड, हम आपस में चैट भी कर रहे थे, आपको याद होगा कल रात को यासर भाई के साथ भी, कि आई रियली फेल्ट के आई फेल्ट बैड फॉर द किड दैट ही couldn't get to the to his maiden 100. He deserved it. He was hard done by a very tough decision. But again, overall, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग 4th इनिंग्स पे बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि how much I feel, what do I feel about Pakistan's strategy, और हमारे पास कभी कभी प्लान ही नहीं होता है, लेकिन it was very refreshing to see कि पाकिस्तान in chasing this 350 का टारगेट had a plan. Imam got injured. They pushed Rizwan up the order because they knew that England was going to bowl spin up front, and Rizwan is one of the best players of spin in our side. He has a great sweep shot. He's a busy player. He rotates the strike. और फिर जब फील्ड आगे होती है तो आपको पता होता है कि आपके पास बाउंड्री ऑप्शंस बन जाते हैं। तो दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक आई थॉट फ्रॉम द मैनेजमेंट टू पुश रिजवान अप द ऑर्डर, और उसने उसका काम भी कर दिया। ही गॉट अ पीच ऑफ अ डिलीवरी। रासिर भाई ने कहा कि फॉर हिम द बॉल ऑफ द गेम वाज to Ben Stokes that the kid bowled, but I think this ball that Rizwan got also is equally good, if not better. So he also got a really good one. Otherwise Rizwan ने जो start दे दिया था, then we were really on our way. उसके बाद फिर हमने जो क्या किया, हमने आगा को नीचे कर दिया, हमने अपने मिडिल ऑर्डर में सारे लेफ्टीज खिला दिए बिकॉज ऑफ द क्रैक्स आउटसाइड द राइट हैंडर्स ऑफ स्टंप जो बन गए थे। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था जिसका नासिर हुसैन ने भी तस्करा किया था कमेंट्री में, अगर हम सुन रहे थे तो, कि दैट वाज अ रियली रिफ्रेशिंग डिसीजन। दोज डिसीजंस आर एक्चुअली इंग्लिश डिसीजंस और ऑस्ट्रेलियन डिसीजंस दैट नॉर्मली आवर ओपोनेंट्स मेक टू काउंटर अस, and it was very refreshing to see that a team like Pakistan went ahead and did that, and almost paid off because Saud played a great innings, Nawaz played a really good hand. तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान really did well। फिर उसके बाद हम टेल के साथ भी देखते हैं कि अबरार को उन्होंने पुश अप किया था on the order, and they told him to just go and attack, right? Because we were not going to make 65 runs just nudging it around. So he took his chances. He played a good cameo of about 5-10 minutes, and then look, I felt Pakistan played their cards extremely well. 350 की चेसें टेस्ट मैच के अंदर ऑन अ डिफिकल्ट पिच, दे आर नॉट इजी टू कम बाय, दे आर वेरी फार एंड फ्यू बिटवीन। तो उस लिहाज से हमें चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वी केम अप शॉर्ट वी कैन नॉट क्वेश्चन देयर एबिलिटी एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन देयर हार्ट। टू मी दे शोड अ लॉट इन दिस गेम, स्पेशली विद द बैट, and obviously there's a lot to build on. So I was really happy with management, the way they came out and played aggressive in our own right. And also they made those right decisions in terms of there was a chess match between Stokes and management, and I think we were second to none.
जहांगीर जी भाई, बिल्कुल हमने सैल भाई, एक्सीलेंट। काफी डिटेल में बात की और हमने पहले टेस्ट मैच में भी काफी डिटेल में इंग्लैंड की बैटिंग पे बात की, बट मे बी फाइनल मोमेंट्स में आप कमेंट करें इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर और कैप्टनसी के ऊपर। यार बिल्कुल, मैं भी वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि एक तो हैरी ब्रूक, यार व्हाट अ टैलेंट ही इज। जब वो लाहौर कलंदर्स के लिए खेले थे तो तब से ही मुझे बहुत पसंद है, और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज में जिस तरह से खेले हैं वो, he is definitely going to be one heck of a player. He is going to be one of the best players in the world in coming years. That's what I feel. जिस तरह की शॉट मेकिंग स्किल्स उसमें हैं, जिस टेक्निक के साथ वो खेलता है, ही इज जस्ट फ्लॉलेस, ही इज एक्सीलेंट प्लेयर टू वॉच। और उसने सेंचुरी बनाई है उस टफ पिच के ऊपर, और वेल डिजर्व्ड, आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी उसी को मिला है। ही प्लेड एन एक्सीलेंट इनिंग। बेन डकेट तो हमसे आउट ही नहीं हो रहा बाय द वे। अब बॉलिंग की तरफ आए ना, देखें यार, मैं इतना ज्यादा रेट नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड की बॉलिंग पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर इस तरह से हमें टफ टाइम देगी, लेकिन क्रेडिट गोज टू बेन स्टोक्स। ही इज अ स्मार्ट कुकी, ही इज द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट फॉर मी। जिस तरह से वो इनोवेशन लेके आता है, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ वो अपनी टीम को लेके चलता है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। उसकी फील्ड प्लेसमेंट जो है वो भी अनयूजुअल रहती है, और बैट्समैन हमारे कई बार उससे यूज टू भी नहीं रहते, जैसे शान साउथ, सॉरी, जैसे पहले मैच में 2 बार आउट हुए थे, तो वो अनयूजुअल अनकन्वेंशनल फील्ड प्लेसमेंट थी। एंड क्रेडिट गोज टू बेन स्टोक्स। वो अपने कार्ड्स को राइट टाइम के ऊपर प्ले करता है, उसको पता है कि मैंने किस बॉलर को किस स्टेज के ऊपर लेके आना है। ही ऑलवेज हैज ए प्लान। जैसे जैक लीच को वो नया बॉल देता है और अपने फास्ट बॉलर्स को फ्रेश रखता है, ताकि वो रिवर्स स्विंग के लिए ज्यादा फ्रेश रहे और ज्यादा जोर लगा के आके बॉलिंग कर सके। तो देखें, ये तो जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, ये सारे यही कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स की कप्तानी की वजह से जो उनकी टीम को एक लिफ्ट मिला है, उसी लिफ्ट की वजह से ही उनके बॉलर्स इन डेड पिचेस के ऊपर आके जोर लगाते हैं, जान लगाते हैं। और जो 90s में हमारे बॉलर्स किया करते थे, वो अब इंग्लैंड के बॉलर्स कर रहे हैं। इट वाज रियली गुड टू सी, इवन दो वी वर ऑन द लूजिंग साइड। लेकिन जब आप क्रिकेट के फैन होते हैं तो स्किल किसी भी चीज की आपको देखने को मिले, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की, तो उसको बंदा देख के एंजॉय करता है। जो 3 डिलीवरीज थी, एक रिजवान को, एक बाबर को, एक अब्दुल्ला शफीक को, they were the highlight of this game, and they had a good day. And Ben Stokes is going to be a leader who will be remembered for years to come. चलें सैल भाई, फाइनल कमेंट कर लें जोएल विल्सन के डिसमिस जो उसने डिसीजन दिया उसका, साउथ शकील का। हाउ डू यू रेट दैट डिसीजन? Yeah, it's very unfortunate. Let's put it this way: not only Pakistan lost the game, but Saud didn't get a chance to get 100. You know, that is travesty. You know, that was extremely bad. And the thing that hurts the most is there is technology, और ये soft signal की जो एक प्रॉब्लम है वो तो मुझे कभी समझ नहीं आई है, क्योंकि जब आप सॉफ्ट सिग्नल देते हैं इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये डिसीजन इस तरह देखा है, राइट? So then why are you going upstairs? You just give it out, right? Why are you giving it out? You want to check it, right? You would like to check it. So जब आप check करना चाह रहे हैं because you're not sure. So if you're not sure, then there shouldn't be a soft signal, okay? Because soft signal का मतलब क्या होता है? Signal is a signal to me, soft, hard, otherwise it doesn't matter. जब आप सिग्नल दे रहे हो इसका मतलब कि या आप श्योर हो या नहीं हो, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, इधर और। इफ देयर इज एनी डाउट यू से आई डोंट नो। रनआउट के अंदर आप श्योर नहीं होते हो तो आप ऊपर भेज देते हो कि भाई आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट मेक दिस कॉल, यू टेक इट फ्रॉम हियर, राइट? आप ये तो नहीं कहते हो कि मेरे ख्याल से आउट है बट आप बता देना मुझे, इस तरह तो नहीं होता है ना। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस सॉफ्ट सिग्नल policy doesn't, I never get it. So it was, and again, what was the guy thinking, right? It was clearly Pope also, see, जब आप कोई कैच लेता है या कोई क्लेम करता है तो आपको फील्डर ही बता देता है कि उसका क्या माइंडसेट है, वो क्या क्लेम कर रहा है। वो he was not sure. If you just look at his body language, he wasn't sure. He knew he had grasped it, okay? और जब आपको पता भी है, आपको नजर भी आ रहा है, पूरी कॉम देख रही है कि भाई this ball was on the ground before he claimed it. तो I don't know. I mean, काफी मैंने कह दिया है उसके ऊपर और आप सबको ही पता है कि what we feel about that. But yeah, I think it was unfortunate. We came up short और सिर्फ 25-26 रन से पाकिस्तान मैच हार गया। हमने competitive क्रिकेट खेली थी। अब थर्ड मैच के अंदर we just play for pride. Obviously, our young guys needs to get that experience. They need to get that exposure, and we need to build off of that. Okay. And one thing is कि मैं सुन रहा था किसी को बात करते हुए कि
For me, Abdullah Shafiq's ideal position should be number 3. And we'll talk about that in future videos, why this is not the time. But if Abdullah gets set on 3, Babar 4, and Saud 5, we need to persist with this because you have to trust your valuation. अगर आप अपने आप पे trust करते हैं तो आप उसको खेलने दें, उनको लंबा खेलने दें, और ये management करती भी है, लंबा खिलाती भी है. So for me, these are the 3 guys that can stay, and Shan Masood can be drafted as an opener because he's an opener by trade. So you kill kind of 2 birds with 1 stone. So from that perspective, Pakistan plays for the pride, and hopefully, I know हमारी video लंबी हो गई है, तो I'm going to be very short now. But yeah, I think hopefully we can go ahead and get a good outing in. और prediction की बात हम बाद में करेंगे, जो मैंने दी थी prediction, तो I am still in contention with the prediction, unfortunately. वो सीरीज के एंड पे करेंगे. जी बिल्कुल यार, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं. कोशिश की हमने इस पूरे टेस्ट मैच को कवर करने की विद इन 25-26 मिनट्स. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी. अगले मैच से पहले हम प्री मैच की वीडियो लेके आएंगे, फिर उस मैच के बाद पोस्ट मैच की वीडियो लेके आएंगे. इसी तरह वीडियोस आने वाले वक्तों में लेके आते रहेंगे. बाय द वे, इन बिफोर द नेक्स्ट गेम PSL भी उसका ड्राफ्ट होने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम अपनी वीडियो लेके आपके लिए आएंगे. तो इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए प्लीज. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज. जस्ट अ डिस्क्लेमर के वीडियो साफ सुथरी होंगी और आप फैमिलीज के साथ देख सकेंगे. थैंक यू.